الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المجتبى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والعلا أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه العلل وكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے. اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے حضرات ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالمیہ صفت آدمیہ تتمہ دور زمان نبی کریم رؤوف الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر منور بارگاہ میں پورے ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، جو لوگ جا چکے ہیں انہیں جانے دیجئے. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے رہیں اور پوری محبت اور دل جمی کے ساتھ جو کچھ میں بولوں اسے سننے کی کوشش کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، یہ مصطفیٰ کی جو میلاد ہے جو اٹھ کر چلا گیا، یا کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں آئے کہ بھئی صبح کو جلوس محمدی نکالنا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں آئے کہ جلوس محمدی نکالنا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، آپ یہاں پر سن رہے ہیں اور صبح کو جلوس محمدی میں شامل ہوں گے، یہ اس سے اور اچھا زیادہ ٹھیک ہے. کیونکہ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا عشق سب کو برابر نہیں ملتا. توجہ ہے، مصطفیٰ کا عشق سب کو برابر نہیں ملتا، سب کو برابر نہیں ملتا. اگر پیچھے کی فہرست دیکھو گے تو بلال سے کہا تھا کس نے؟ جو ظلم کرتا تھا امیہ. بلال سے کہا تھا اے بلال تم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے. تم مصطفیٰ کا ترانہ پڑھنا چھوڑ دو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے. لیکن عشق دیکھیے بلال کا. حضرت بلال نے کہا تھا اے ظالم امیہ، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دے گا یا میرے ہونٹوں کو سی دے گا تو میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں گا، مصطفیٰ کی یاد منانا چھوڑ دوں گا، تو یہ تیرا غلط دماغ ہے. تو
बिलाल के होठों को सी सकता है, लेकिन इस दिल पे हुकूमत मुस्तफा की है। इस दिल पे हुकूमत मुस्तफा की है। तू मेरे दिल पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इश्क सबको बराबर नहीं हो सकता। तवज्जो है। कोई इंसान ठंडी की रातों में तहज्जुद पढ़ता है उठकर, है या नहीं ऐसा? कोई इंसान ऐसा है कि वो तहज्जुद नहीं पढ़ता। कुछ इंसान ऐसे हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। कुछ इंसान ऐसे हैं जो सिर्फ फजर और इशा की और मगरिब की पढ़ते हैं, ज़ोहर की छोड़ दी, असर की छोड़ दी। लेकिन इसका माना यह नहीं है कि तुम पे 5 वक्त की फर्ज नहीं है, या जो मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं सुन रहा, जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं कर रहा, जो मुस्तफ़ा की महफिलों से भाग रहा है, इसका माना यह नहीं है कि इस पर मुस्तफ़ा का इश्क करना, मुस्तफ़ा को मानना इस पर फर्ज नहीं है। याद समझ लो, जिस तरीके से अल्लाह को एक जानना तमाम मुसलमान के लिए जरूरी है, ऐसे ही मुस्तफा को अल्लाह का पैगंबर जानना, उनकी अजमतों को पहचानना, उनकी शान और शौकत को जानना हर एक मुसलमान पर फर्ज है। तवज्जो है, हर एक मुसलमान पर फर्ज है। अब आप कहेंगे कैसे? तवज्जो रखना। अगर बच्चों तुम चुप जाओ तो कुछ मैं सुना सकूं। मोबाइल रख दो, कोई बात नहीं है, इसे जेब में रख लो बेटा। और जो लोग पीछे बैठे हैं ना, अगर आगे उन कुर्सियां खाली हैं तो वो भी भाई उठकर आ जाएं। जो पीछे ज्यादा पीछे हैं आ जाएं, तो करीब आ जाओगे, क्योंकि हर जो कौम है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे मुसलमान भाई हैं कि वो आगे बढ़ने से हमेशा कतराते हैं। इसीलिए आज देख लो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त वो आएगा कि जब इंसान के सामने, मुसलमान के सामने मुसलमान भाई का कत्ल कर दिया जाएगा, उसको सताया जाएगा, उसकी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, लेकिन मुसलमान में इतनी ताकत रह जाएगी कि वो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। वो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। आज तुम हालात देख लो कि हमारे मस्जिदों पर अगर तोड़ी जाए, हमारे भाई को जो है दिन दहाड़े मार दिया जाए, तो हम सिर्फ इतना करते हैं कि बस मेरा नाम ना आना चाहिए, मेरा नाम ना आना चाहिए। तवज्जो रखना। मैं किस बात को अर्ज कर रहा था कि मुस्तफा की मोहब्बत, जिस तरीके से अल्लाह को एक ना मानने से मुसलमान नहीं हो सकता, वैसे ही अल्लाह का सच्चा रसूल और उसकी शान को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। तवज्जो है। आप देखें कि मिलाद मुस्तफ़ा का ये मौका है, आपने इतना इंतजाम और इंतजाम किया। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपने इतना इंतजाम क्यों किया है, उलमा को बुलाया, डेकोरेशन और ये रोशनी लाइटिंग का इंतजाम किया, किस लिए किया है, तो आप तमाम लोगों का क्या जवाब होगा कि भाई खुशी है, हमें खुशी है इसलिए किया है। मैं कहूंगा भाई किस बात की खुशी है, तो आप कहेंगे यार आमद मुस्तफ़ा की खुशी है। क्या कहेंगे? आमद मुस्तफ़ा की खुशी है। मैं कहूंगा कि आमद मुस्तफ़ा की उलमा इकराम की तवज्जो, मैं कहूंगा कि यार आमद मुस्तफ़ा की तो मैं खुशी है, ये बताओ जरा सबसे पहले आमद मुस्तफ़ा की आमद की किसने खुशियां मनाई? तो उलमा जवाब देंगे कि सबसे पहले आमद मुस्तफ़ा की खुशी और किसी ने नहीं, बल्कि उसके परवरदिगारे आलम ने मनाई। किसने? उसके परवरदिगारे आलम ने मनाई। मतलब ठीक है, परवरदिगारे आलम ने बनाई। अब तमाम लोग जानते हैं कि हुजूर से अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है, कितनी मोहब्बत फरमाता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तमाम कायनात के ये नजारे, ये आसमान का सामियाना, ये शम्सो कमर का चमकना, सब मुस्तफा के ही तो सदक़े में बनाया है। अब अल्लाह अगर एक मकान अगर कोई एक मकान अपने बेटे के लिए बना दे, उसमें पत्थर बिछवा दे, उसमें टाइल्स लगवा दे, उसमें अच्छी डेकोरेशन करा दे, तो पता है वो किसी को उसमें कील या इश्तिहार भी नहीं लगाने देता है।
कहता नहीं, ये बड़ी मेहनत से अपने बेटे के लिए बनवाया है, इसे नहीं तोड़ने दूंगा, इसमें गंदगी नहीं करने दूंगा। अब जिस अल्लाह ने इस तमाम कायनात को सजाया हो मुस्तफा के लिए, और जब वो मुस्तफा को, तवज्जो रखना, जब अल्लाह उसी मुस्तफा को दुनिया में भेज रहा है, उस नेमते उज़्मा को अल्लाह हमें दे रहा है, तो तारीख कहती है कि अल्लाह ने खुशियां मनाई। सबसे पहले अल्लाह ने खुशी मनाई। भाई एक बात समझे, मेरी तरफ तवज्जो रखें कि हमें अल्लाह का महबूब मिला है, अल्लाह का हमें महबूब मिला है, तो हम खुशियां मना रहे हैं, ये तो बात समझ में आ रही है। क्यों यार, तमाम इंसानियत जुल्म के चंगुल से आजाद कराई किसने? मुस्तफा ने। ये पेशानी इतनी जलील हो चुकी थी, हर पत्थर के सामने झुक रही थी, हर ऊंची से ऊंची पहाड़ के सामने झुक रही थी, ये शम्सो कमर के सामने झुक रही थी, ये पेशानी रुस्वा हो चुकी थी। इस पेशानी को तमाम चीजों के हटाकर अल्लाह के सामने झुकाने वाला अगर कोई है तो वो और कोई नहीं, वो आमना का लाल ही, आमना का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो आमना का लाली ही है। तो बात समझ में आई कि अल्लाह ने हमें महबूब दिया, हम खुशियां मना रहे हैं, ये तो कारी जुबैर साहब समझ में आता है। लेकिन अल्लाह अपने महबूब को, इतने सोने महबूब को हमें दे रहा है, तो अल्लाह क्यों खुशियां मना रहा है? मिसाल से समझे, हमें हमारे घर में माँ और बहनें गालिबन सबके घर में होती हैं, तो बेटी अपने बाप को कितनी प्यारी होती है? होती है या नहीं होती है? भाई को कितनी प्यारी होती है? माँ को कितनी प्यारी होती है? होती है या नहीं होती है? तमाम नाजो नखरे उठाता है, तमाम काम अपनी बेटी के लिए करता है, लेकिन जब बेटी रुखसत होती है तो आंसू बहाता है या नहीं है? आंख से आंसू निकलता है या नहीं निकलता है? लेकिन एक तवज्जो रखना, बेटी का रिश्ता जुड़ा लड़के से किसी उस खानदान में, अब रिश्ता दोनों का जुड़ा है, उधर भी खुशी मनाई जा रही है, उधर भी रिश्ता जुड़ा है, उधर भी मेहमान आ रहे हैं, इधर भी मेहमान आ रहे हैं, उधर भी खाना खिलाया जा रहा है, इधर भी खाना खिलाया जा रहा है, रिश्ता दोनों तरफ जुड़ा है, रिश्ता दोनों तरफ कायम हुआ है। लेकिन जैसे ही बेटी की रुखसती होती है तो बाप रो रहा है, माँ रो रही है, बहन की आंख में आंसू है, भाई की आंख में आंसू है। मैंने पूछा भाई रिश्ता दोनों जगह जुड़ा है, वो तुम्हारी बेटी को लेने आए हैं, रिश्ता कायम हुआ है, उन्होंने भी मेहमान बुलाए हैं, तुमने भी मेहमान बुलाए हैं, तुम रोते क्यों हो? तो वो कहते हैं हमने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला है, बड़े नाजों से पाला है, बड़ा प्यार से पाला है, लेकिन बेटी की जब जुदाई हो रही है, बेटी की जब विदाई हो रही है, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसके गम में ये आंसू निकल रहे हैं, उसके गम में ये आंसू निकल रहे हैं। हमने दूसरी तरफ पूछा भाई तुम्हारी तरफ तो कोई नहीं रो रहा, जो बेटी लेना आए हैं तुम्हारी तरफ तो कोई नहीं रो रहा, तो बोले यार हम क्यों रोएंगे, हमसे कोई जुदा थोड़ी हो रहा है, हमें तो मिल रहा है, हमें तो मिल रहा है। लेकिन आज तो हालात ऐसे हैं कि इतना नहीं मिलता है, बल्कि इतना मिलता है कई साल तक के लिए बेटी के बाप को कर्जे में डुबो दिया जाता है, कई साल तक बेटी का बाप कर्जे से नहीं निकलता। याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे बुरी शादी वो है जिसमें दोनों रिश्तेदार कर्जे में डूब जाएं। अल्लाह यार रिश्ते कर रहे हैं हम उसकी बेटी को लाए यार, दुख दर्द से उसने पाला था, बेटी दे दी, ये कम बड़ी बात है? फिर हम उसका खून चूस रहे हैं। अरे हमने बात जगह ऐसा देखा है, अगर तमाम सामान मौजूद है, उसने तमाम चीजों का इंतजाम किया है, लेकिन अगर बिल पे ले जाने में ताखीर हो जाए ना तो इतने नखरे दिखाते हैं, वहां से उठ कर चले आते हैं, उठकर चले आते हैं वहां से। मेरे भाइयों कभी सोचा है तुमने ये मुस्तफा प्यारे देख रहे होंगे और कल मैदाने महशर में उसी रसूल हाशमी के सामने पेश होना है जिसके हम तारे लगाते हैं, जिसका हम दामन पकड़ कर कहते हैं या रसूल अल्लाह दुनिया छूटे छूट जाए, जमाना रूठ जाए, लेकिन मुस्तफा तेरा दामन नहीं छोड़े।
बताइए, हमने किसी के बेटी को सताया, किसी के बाप को कर्जे में डुबो दिया, तो क्या हम ये मुस्तफा का दामन थामे हुए हैं? ये मुस्तफा का। देखो मेरी तकरीर ऐसी होगी मेरे भाइयों, गुजारिश है यार, चाय से 2-3 जलसों में यही मसला पड़ जाता है कि पता ना क्या बात है भाई, इतनी मेहनत तो की नहीं है इन लोगों ने कि चाय आकर पिला दी। पूरा दिन 500 रुपए कमाते हैं, खून पसीना बहाते हैं, कोई पानी का नहीं पूछता। यार ये कुर्सियों का इंतजाम है, मुस्तफा की महफिल में बैठे हो, अल्लाह के रसूल की बातें सुनने, इससे भी अच्छी कोई चीज हो सकती है? मेरे भाई चाय वालों, गुजारिश है इन्हें बाद में पिला देना। आप अब कपों से नहीं बल्कि इन्हें कटोरों से पिलाना बाद में, मेरी तरफ से छूट है, लेकिन इस टाइम रोक दो। नहीं ना, मैं मने नहीं, लेकिन असल में ऐसा होता है कि तकरीर का पूरा मजा खराब हो जाता है। मैं नहीं कहना चाहता यार, तुमने इतने रुपए खर्च किए, एक बात बताओ, उसमें भी तुम सब चाय पी लोगे तो क्या करोगे? चाय पीने से तो पूरी दुनिया बर्बाद हुई पड़ी है, तुम पता ना, पूरा इंडिया बर्बाद है नहीं। तो चाय हर वक्त में पियो, समझ रहे हैं? कोई चीज जब ज्यादा पी लो ना और ज्यादा खा लो तो वो नुकसान ही देती है, इसे वक्त से खाओ। हाँ, ये जो अंग्रेज चाय छोड़कर गए थे ना, ये इसलिए ना छोड़ के गए थे कि जब दिल करा जब भी चुस्की मारते रहे और चुगलखोरी और दलांदों पर एक एक लंबी लंबी छोड़ी जा रही है, इसलिए नहीं छोड़ के गए थे, समझ रहे हैं? ये तो उन्होंने एक दवाई के तौर पे बनाई थी और हमारे यहाँ पूरा खाना बना दिया इसका सुबह का, समझ रहे हैं? सालन ही नहीं पकता, हजरत बात घर में चाय से ही रोटी खा ले है? तो इसमें बुरी बात नहीं है भाई, जैसा अल्लाह दे दे बहुत बड़ी बात है। अगर किसी के सर के ऊपर छत है, समझ रहे हैं, और उसे 2 वक्त का खाना मिल रहा है टाइम से इज्जत के साथ, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है या नहीं? एहसान है, एहसान है या नहीं? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरे भाई कभी दिल पर हाथ रख के सोचा करो कि यार हम मुस्तफ़ा के तराने तो पढ़ते हैं, हम क्या मुस्तफ़ा की सीरत पे अमल भी करते हैं या नहीं करते हैं? जो मुस्तफ़ा ने बताया यार उस पर भी अमल करते हैं या नहीं करते हैं? कभी तो सोचा करो यार, तन्हाई में बैठकर, जिस मुस्तफ़ा ने आँख खोली हो तो कहा हो रब्बे हबली उम्मती, जब कब्र में गया हो तो कया हो रब्बे हबली उम्मती, जब सिदरा पे पहुंचा हो तो कया हो रब्बे हबली उम्मती, जब अल्लाह से बात की हो तो कया हो रब्बे हबली उम्मती। आज उसका उम्मती अपना नबी नहीं कहने तैयार है? अच्छा, हमारे पास 24 घंटे हैं, चलो 24 घंटे में 7-8 घंटे डॉक्टर बताते हैं भाई कि कम से कम इंसान को 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, तो हम चलो 6 घंटे 7 घंटे नींद के निकाल दो, 24 घंटे में से अगर 6-7 घंटे निकाल दिए तब भी 16-17 घंटे बचे नहीं बचे? 16-17 घंटे बचे या नहीं बचे हमारे जागने के? तो कभी हमने दिल पर हाथ रखकर ये सोचा है कि यार 50-40 साल की जिंदगी है हमारी, चलो 10 मिनट इन 17 घंटा में ऐसे बनाते हैं कि 10 मिनट हम कुछ नहीं करेंगे, अपने नबी पे दुरूद पढ़ा करेंगे। क्या करा करेंगे? अपने नबी पर दुरूद पढ़ा करेंगे। अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिस इंसान ने ये तहिया कर लिया कि सुबह को 50 मरतबा दुरूद पढ़ूंगा, शाम को 50 मरतबा दुरूद पढ़ूंगा, मुस्तफा फरमाते हैं कल मैदान महशर में मैं मोहम्मद उससे मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, और मुसाफा करें मेरे मुस्तफा। एक तवज्जो फरमाना, मैदान महशर कोई छोटी चीज नहीं है हज़रत, तवज्जो का तालिब है, कोई छोटी चीज नहीं है, तवज्जो रखना। अभी हमारे गांव में मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल दे दूं, संभल से ज़ियाउर रहमान बर्क साहब आ जाएं या दीगर इससे बढ़कर कोई MP MLA या कोई CM आ जाए हमारे गांव में और मजमा हो हजारों का, बस हजारों का, कितना हजारों का मजमा हो, और अगर वही CM, तवज्जो रखना मेरी बात पर, फिर यहाँ पर इस बात को रखना, हालांकि मैं तशबीह नहीं दे रहा हूँ, वो चीज से तशबीह नहीं दे रहा हूँ यार, दुनिया की हैसियत क्या है कि मुस्तफा की अजमत से तशबीह दी जाए, दी जा सकती है भाई। इन बच्चों को यार या तो निकाल, या इन्हें छुपा दो या इन्हें पीछे बिठा दो। चलो तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ, ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ, ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ। आज तशरी फैलाएंगे आका, आज तशरी फैलाएंगे आका, ऐसा महसूस। यार मुस्तफ़ा की नात पढ़ी जाए हैं, दीवानों के दिल कैसे मचलते हैं यार। हम लोग तो सुनना नहीं चाहते। मुझे एक बात यहीं पर उससे बात पूरी करने से पहले एक बात मुझे याद आ रही है, जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की अजमत क्या है, तवज्जो के साथ सुने। जब इब्तिदाई इस्लाम था ना, तो ये अथॉरिटी हमारी तरह तो थी ना कि जहां चाहा कुरान कितनी ही जोर से पढ़ दिया। समझ रहे हैं, मसलेहत थी उस टाइम। क्या थी? मसलेहत थी। तो कुरान करीम को अपने घरों में छुप कर पढ़ा जाता था। अपने घरों में कुरान मुकद्दस को छुप कर पढ़ा जाता था। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत, आज भी मैं ये कहता हूँ, मैं कितना ही अच्छा बोल रहा हूँ। गुलाम जिलानी साहिब कितनी अच्छी नात पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छा सुर है उनके। मौलाना आफ्ताब मिसबाही साहब ने कितना अच्छा खिताब किया, वहाँ जमीन कितनी अच्छी निजामत कर रहे हैं। लेकिन आज भी अगर कोई उम्दा कारी आकर कुरान की तिलावत कर देना तो सब चीज को भूल जाता है इंसान, सब चीज को भूल जाता है। कुरान इतना अच्छा लगता है। तो यार जब आज के इंसान, हम गुनहगार इंसान कुरान पढ़ें तो दिलों को रंगीन कर दे, हैं दिल थम जाए, तो अगर मुस्तफ़ा कुरान पढ़ते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। रुका जाता होगा किसी से? अबे रुका जाता होगा किसी से? नहीं रुका जाता होगा। अल्लाह अकबर। तो मुस्तफ़ा जब कुरान शरीफ पढ़ते थे अपने घर में, रात का सन्नाटा होता था। अब लाइट का दौर नहीं था, वो ऐसा नहीं था कि जगह जगह लाइट जल रही है। जितनी देर इस्तेमाल में लाते थे इतनी ही देर लाइट की रोशन किया जाता था। मुस्तफ़ा कुरान पढ़ते थे, गलियों में अंधेरा छाया होता था मक्के की। कुरान पढ़ते थे, अबू जहल का घर बिल्कुल करवट में था। किसके? मुस्तफ़ा के। अबू जहल का घर करवट में था और अबू लहब का घर भी करवट में था। अबू लहब ये बदबख्त रिश्ते में सगा चचा था मुस्तफ़ा का, सगा चचा था रिश्ते में अबू लहब, इसका घर भी करवट में था। तो जब रात की तारीकी होती तो मुस्तफ़ा जब कुरान पढ़ते तो अबू लहब के कानों में आवाज टकराती, अबू जहल के कानों में आवाज टकराती। ये कभी बिस्तर पे करवट इधर बदल रहा है, कभी इधर बदल रहा है, इसे सुकून नहीं मिल रहा है, कि इसे सुकून नहीं मिलता है। अब करे क्या? अबू लहब भी मक्के का सरदार था, अपने खानदान में अपने बड़े लोगों में सरदार था, और अबू जहल भी सरदार था, और यही कौम को भड़का रहे थे। अब करें क्या ये? लेकिन एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, अबू जहल से खाट पे नहीं रुका गया। उठा अपने बिस्तर से और टटोलता टटालता मुस्तफ़ा के दरवाजे पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? मुस्तफ़ा के दरवाजे पर पहुंच गया और कान लगाकर मुस्तफ़ा कुरान पढ़ रहे हैं और ये सुन रहा है। इससे मजा आता चला जाता है, कुरान सुनता चला जाता है। इधर अबू लहब की भी यही कैफियत थी। अबू लहब से भी अपनी चारपाई पे नहीं रुका गया। ये भी उठा, बोला यार रात की तारीकी है, अंधेरा हो रहा है, कोई देख थोड़ी रहा, चलो पास से सुन के आएंगे। कोई देख थोड़ी रहा है, पास से सुन के आएंगे। टटोलता टटालता दीवाल को इस तरीके पकड़ता पकड़ता पहुंच गया मुस्तफ़ा के दरवाजे पर। कहाँ? मुस्तफ़ा के दरवाजे पर। अब जैसे ही इसने दीवार पर हाथ लगे तो इसका हाथ अबू जहल पे पड़ गया। किस पे पड़ गया? अबू जहल पे। अबू जहल बोला कौन? बोला तू कौन? भाई बोले इतनी रात में कर क्या रहे हो? तो बोला मैं अबू जहल हूँ। तो अबू लहब बोला मैं अबू लहब हूँ, लेकिन ये बता तू इतनी रात में मुस्तफ़ा के दरवाजे पर कर क्या रहा है? तो अबू जहल ने कहा ना मैं करने कुछ नहीं आया, मैं ये देखना आया था कोई रात में तो ना आता है मुस्तफ़ा के दरवाजे पे हमारे छोड़ के। चला कि देखो इनके दिलों में खलबली थी, लेकिन चला कि देखो बोला मैं ये देखने आया था कि कहीं और कोई आ तो नहीं रहा, चुपके चुपके कलमा तो नहीं पड़ रहा मुस्तफ़ा का।
तो बोले ठीक है यार मैं भी यही देखने आया। अबू लहब बोला ठीक है यार मैं भी यही देखने आया था। ये दोनों बोले चलो ठीक है भाई सोएंगे। दूसरा दिन गुजरा, फिर वही आदत। मुस्तफ़ा कुरान पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाहु अकबर। जब कुरान पढ़ रहे हैं अबू लहब की फिर वही कैफियत, अबू जहल की फिर वही कैफियत है। अब दोनों करबटे बदलते हैं। अबू जहल दिल में सोचता है कि चलो यार आज थोड़ी आगा। अबू लहब, अबू जहल बोला चलो करीब से सुनेंगे आज थोड़ी आगा। अबू लहब कल तो मनी करके गया। अबू लहब बोला आज थोड़ी आगा अबू जहल हम भी चलते, आज थोड़ी आगा हम भी चलते हैं। फिर गए और जैसे ही गए एक दूसरे से फिर मुलाकात हुई। फिर उनने कहा कि हो सकता है कल मुझे कोई ना मिला इसलिए मैं आज देखने आया था। तो बोले मैं भी देखने आया था क्योंकि सरदार थे। तो बोले चलो भाई सोएंगे, चलो पलट कर चलते हैं, चलो पलट कर चलते हैं। अल्लाह की कसम तीसरा दिन गुजरता है और तीसरे दिन फिर वही रात आती है। मुस्तफ़ा कुरान पढ़ना शुरू करते हैं। इधर ये अपनी चारपाइयों पर करबटे बदल रहे हैं। इन्हें बेचैनी है, इन्हें सुकून नहीं मिलता है। सोचा 2 दिन अबू जहल आया है, आज थोड़ा ही आगा अबू जहल। अबू लहब निकला और पहुंच गया। लेकिन अबू जहल की भी यही हालत। अबू जहल भी पहुंचा, अबू लहब भी पहुंचा। मुख्तसर ये दोनों जने पहुंच गए। अब फिर इत्तेफाक से फिर इनकी मुलाकात हो जाती है। तो बोले आज क्यों आया भाई? अब वो चुप है। वो बोला अबू जहल अबू लहब से तू क्यों आया आज ये बता। तो दोनों खामोश हैं, दोनों खामोश हैं। अल्लाह की कसम याद रखना, ये मेरा जुमला दिलों पर लिख लो। आज मुसलमानों तुम मुस्तफ़ा के जिक्र से कतराते हो। वो दिन दूर नहीं, मुस्तफ़ा ने फरमाया था जब लोगों का दिल मस्जिद में लगना खत्म हो जाए, मुस्तफ़ा की मजलिसों में दिल लगना खत्म हो जाए, बाजारों में दिल लगाना शुरू कर दे, चौराहों पे दिल लगाना शुरू कर दे, अय्यासियों में दिल लगाना शुरू कर दे, तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं उस वक्त समझ लेना अब कयामत दूर नहीं है बल्कि ये कयामत की एक निशानी है। तो तुम घबराओ मत मेरे भाइयों। जो लोग मुस्तफ़ा के जिक्र को सुनना नहीं चाह रहे हैं ना, तो इससे डरो, इससे डरो। समझाओ कि मेरे मुस्तफ़ा आज से 1500 साल पहले इस बात को कह चुके हैं, इस बात को कह चुके हैं। अबू लहब बोला अबू जहल से, ए अबू जहल ये बहाने बनाना छोड़ दे, हमारी हर गर्मी अपनी जगह रही, लेकिन मुस्तफ़ा इतना अच्छा है, आमना का लाल इतने अच्छे हैं, जब ये पढ़ते हैं तो हमसे रुका ही नहीं जाता है। अल्लाह अकबर, जब ये पढ़ते हैं तो हमसे रुका ही नहीं जाता। बहाने क्यों बनाते हो, हमसे रुका ही नहीं जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे मुस्तफ़ा ने हमें तालीम दी। आमद मुस्तफ़ा है, ये सबक की घड़ियां हैं मेरे भाई। हमारे लिए एक दिन आमद मुस्तफ़ा नहीं है, हमारे लिए 2 दिन आमद मुस्तफ़ा नहीं है। ये तो एक मखसूस दिन है। अगर बेमखसूस दिन है, इश्क करने वाले के लिए तो रोज आमद मुस्तफ़ा है। इश्क करने वाले के लिए तो वो रोजाना रहमत है, इश्क करने वाले के लिए तो वो रोजाना करम करने वाले हैं। रोजाना करम करने वाले यार, उनकी रहमत ही तो है जो आज हम यहाँ बाकी हैं, है या नहीं। मेरे भाई बैठे रहे, तवज्जो पे अगर जरूरत से जा रहे हैं तो चले जाए, या अगर मेरी बातें अच्छी ना लग रही तो इशारा कर दे, मैं बात को मुकम्मल कर लूंगा। अरे समझ में आ रही है नहीं बातें हैं, बिल्कुल समझ में आ रही है। हाँ तो याद रखो, मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैदान महशर में कोई आम चीज तो है नहीं, है कोई आम चीज तो है नहीं मैदान महशर। मुझे यहाँ पर एक तफसीर नईमी है। तफसीर नईमी एक बहुत ज़ख़ीम किताब है और इसको लिखने वाले मुफ्ती यार खान नईमी हैं। इसको लिखने वाले मुफ्ती यार खान नईमी हैं। वो लिखते यार तुम मैदान महशर को समझते क्या हो, तुम मैदान महशर को समझते क्या हो। अच्छा तुमने ये हदीस से पाक तो सुनी होगी, इमाम साहब ने सुनाई होगी, कारी जुबैर साहब आपके पास में इन्होंने सुनाई होगी, कभी सुनी होगी कि मैदान महशर में ये 12 घंटे का या 14-15 घंटे का दिन नहीं होगा, बल्कि कितना बड़ा दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह अकबर, 50,000 साल। यहीं पर तुमसे सवाल, हम सब हैं, पूरी दुनिया अल्लाह जानता है ना कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है, जानता है या नहीं जानता है, जानता है या नहीं जानता है। अल्लाह अगर चाहे तो
एक सेकंड में नहीं, बल्कि मैं और कोई इससे छोटी चीज हो तो मैं कहूँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह अगर चाहे तो एक पल में जन्नतियों को जन्नत में भेज दे, जहन्नमियों को जहन्नम में भेज दे। ये अल्लाह के लिए बड़ी बात है? नहीं बड़ी बात, क्योंकि वो खालिक के कायनात है। अगर वो चाहे तो इस दुनिया को मिनटों सेकंड में खत्म कर दे और कोई उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, कोई उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। लेकिन ये अल्लाह ने मैदान महशर में 50,000 साल का दिन रखा ही क्यों? बहुत अहम जुमला दे रहा हूँ मेरे प्यारो, शायद मैं पहली बार सुना रहा हूँ, आपने सुन लिया हो, मैं ये कहूँगा भाई मैं ही सुना रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन मुझे नया लग रहा है। 50,000 साल का दिन अल्लाह ने क्यों रखा? यार तुम हमारे मुस्तफा को समझते क्या हो? समझते क्या हो? अल्लाह कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारी खातिर बुलंद कर दिया, तुम्हारे जिक्र को तुम्हारी खातिर बुलंद कर दिया। ऐ अल्लाह कितना बुलंद कर दिया, कितना ऊंचा कर दिया। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब मैंने तेरे जिक्र को इतना बुलंद कर दिया। ये कायनात का जो निजाम है, रखना, ये जो कायनात का निजाम है, अच्छा अगर कोई चाहे कि भाई इतवार के दिन से रात पहले होगी दिन बाद में होगा, तो ऐसा हो सकता है? ऐसे हो सकता है? अगर कोई चाहे कि चांद आज से दिन में रोशन नहीं होगा बल्कि रात में रोशन नहीं होगा बल्कि दिन में रोशन होगा, कोई कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? यहाँ निजाम कुदरत है और उसकी कुदरत में कोई दखल नहीं दे सकता, उसकी कुदरत में कोई दखल नहीं दे सकता। तवज्जो के साथ उलमा के मुफ्ती मौलाना आफ्ताब वाला मिसबाही साहब, अल्लाह कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह कहीं तो कुरान में जमा के सिगे को इस्तेमाल फरमाता है, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा, कहीं जमा के सिगे को इस्तेमाल फरमाता है और कहीं वाहिद के सिगे को इस्तेमाल फरमाता है। तवज्जो तुम्हारे लिए, कभी तो अल्लाह कहता है ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, कहीं अल्लाह फरमाता है ये काम हमने किया, ये काम हमने किया। जहां अल्लाह कुरान में वाहिद के सिगे को इस्तेमाल फरमाता है वहां अल्लाह को अपनी वहदानियत और यकताई बताना मकसूद होता है, वहां अल्लाह को अपनी वहदानियत और यकताई बताना मकसूद होता है। और जहां अल्लाह जमा के सिगे को इस्तेमाल फरमाता है, यानी ये कहता है ये काम हमने किया, ये काम हमने किया। तो जिस चीज के लिए अल्लाह कह रहा है, जिस फेल के लिए अल्लाह फरमाता है, वहां पर उसकी शान और अजमत को बताना होता है और साथ ही अल्लाह पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा होता है। अगर तुम में ताकत है तो ये काम हमने किया, तुम ऐसा करके दिखाओ। बच्चों बहुत अहम दूंगा हजरत, अगर तुम्हारे दिलों में उतर जाए तो कहना, चैलेंज कर रहा होता है अल्लाह। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? क्या फरमाया अल्लाह ने? वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब हमने आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। या अल्लाह तूने कितना बुलंद कर दिया मुस्तफ़ा का जिक्र। अल्लाह फरमाता है मैंने कायनात का निजाम बनाया है, ये किसी के लिए नहीं बदलता, लेकिन ऐ महबूब मैंने तेरा मकाम वो बनाया है। अगर तू कहेगा ना कि पत्थर बोल पड़े तो मैंने पत्थरों को बोलने की ताकत नहीं दी है, लेकिन तेरी खातिर बुला कर दिखा दी। यार पत्थर में बोलने की ताकत है, लेकिन किसकी खातिर बुलाया अल्लाह ने? मुस्तफा की। ये खिलाफ है नहीं भाई, जब पत्थरों को ताकत ही नहीं है तो अल्लाह ने बुला दिए तो अल्लाह ने क्या फरमाया? महबूब ऐसी अजमत नहीं है तेरी, ऐ महबूब अगर तू कहेगा, हालांकि मैंने पत्थर बोलने वाले नहीं बनाए हैं, अगर तू कहेगा तो मैं पत्थरों को बुला दूंगा। ऐ महबूब अगर तू कहेगा ना ये शजर चलने वाले मैंने नहीं बनाए हैं, अगर तू कहेगा जरा चल के आ जाए, दरख्त मेरे पास आ जाए, तो मैं ऐ मुस्तफा मैं तेरे लिए दरख्तों को चला दूंगा। ऐ मुस्तफा अगर तू कहेगा ना ये डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाए, हालांकि ये पलटता नहीं है, ये किसी के लिए लौटता नहीं है, लेकिन ऐ मुस्तफा अगर तू कहेगा तो मैं डूबे हुए सूरज को तेरे लिए पलट दूंगा। ऐ मुस्तफा
अगर तू कहेगा ना अबू लहब के बेटे को दरिंदे फाड़ दे तो मुस्तफा जाने रहमत मैं तेरे खातिर अबू लहब के बेटों को दरिंदों से फटवा दूंगा। ए मुस्तफा अगर तू कहेगा कि किबला बदल जाए तो मुस्तफा तेरे लिए मैं किबला बदल दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, औलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा तेरे लिए किबला बदल दूंगा। किबला बदला गया नहीं बदला गया? बदला गया या नहीं बदला गया? अल्लाह कितनी मोहब्बत करता होगा मेरे मुस्तफा से, अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता होगा, फरमाता होगा नहीं फरमाता होगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को, ए महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तवज्जो रखना, मैं कह रहा था कि 50,000 साल का दिन क्यों रखा मैदान महशर में? कारी जुबैर साहब, मैदान महशर में 50,000 साल का दिन क्यों रखा? मौला तू तो जानता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। तू जब चाहे जिस टाइम चाहे जिसे चाहे जन्नत दे दे, जिसे चाहे तू अपने फैसले से अपने आदिल से उसे जहन्नम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 50,000 का साल हम जैसे के लिए है कि यार 12 घंटे बनाओ भाई, सारे बच्चों का सबक नहीं होगा, 4 घंटे का टाइम रखो, हमसे 20 बच्चे नहीं सिलेंगे। लेकिन अल्लाह तू तो जानता है, तू तो जानता है 50,000 का साल ये रोज़े महशर में दिन क्यों रखा। आखिरी जुमला है अगर दिलों पर लिया जाए तो तवज्जो रखना। मुफ्ती यार खान नईमी तफसीर नईमी के अंदर क्या फरमाते हैं? मुफ्ती यार खान नईमी इस इबारत को रकम करते हैं और लिखते हैं 50,000 साल का दिन अल्लाह ने इसलिए नहीं रखा कि मैं लोगों का बारी बारी 50,000 साल तक मैं हिसाब लूंगा तब हिसाब लिया जाएगा। बेशक सुभान, इसलिए नहीं रखा। वो तो खालिक के कायनात है यार, उसे इतना लंबा चौड़े हिसाब की जरूरत क्या? और रोजाना फरिश्ते लिख भी रहे हैं। हालांकि अल्लाह जानता ये तो हमारे लिए है मेरे भाइयों, ये हमारे लिए है। तवज्जो रखना, मुफ्ती यार खान नईमी लिखते हैं, लिख लो अपने दिल की कलम, अपने दिल पे तख्ती पर लिख लो इस जुमले को। मुफ्ती यार खान नईमी लिखते हैं मेरे भाइयों हिसाब के लिए नहीं है वो दिन 50,000 साल का, बल्कि मुफ्ती यार खान नईमी लिखते हैं 49,000 साल। तवज्जो रखना, कितने? 49,000 साल 999, 49,000 साल 999, 11 महीने 19 घंटे। बेशक सुभान अल्लाह। 49,000 साल 999 और 11 महीने 19 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैदान महशर में अल्लाह के रसूल की शान और अज़मत बयान की जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 49,999 साल 11 महीने 19 घंटे सिर्फ मुस्तफा की अजमत बयान की जाएगी। और जब बात आएगी हिसाब लेने की तो बचे 5 घंटे। अल्लाह खाली के मालिक है, अल्लाह 5 घंटे में सबका फैसला करेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। अब यहाँ पर मैं कुरान की आयत पढ़ दूं ताकि मेरी बात बहुत मजबूत हो जाए। भाई कुरान से पढ़ के हमारे लिए कोई दलील थोड़ी है, कोई दलील थोड़ी है कुरान से पढ़ के, या है? नहीं है ना। तो अल्लाह कुरान के 30वें पारे में क्या फरमाता है? अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाता है महबूब हम तुम्हें अनकरीब, तवज्जो रखना, सौफा दाखिला फेले मुजारे पे तवज्जो रखना, इसके अनकरीब माने आ जाते हैं बहुत ज्यादा करीब। क्या फरमाता है अल्लाह? अल्लाह फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब हम तुम्हें अनकरीब इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, ऐ महबूब तुम खुश हो जाओगे।
ए महबूब तुम राजी हो जाओगे। अब यहाँ पर मैं बड़ा प्यारा जुमला दूंगा भाई, कारी जुबैर साहब मेरी हौसला अफजाई करें कि अल्लाह ने फरमाया ए महबूब हम तुम्हें अनकरीब इतना देंगे तुम राजी हो जाओगे। अब उलमा इकराम का जंबे गफीर जो है मिंबर नूर पर जलवा कर है, और भी तमाम लोग, मैं नहीं मानता पढ़े लिखे नहीं है, इनमें सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं। आप ये बताएं कि मुस्तफ़ा के दर और मुस्तफ़ा के दामन और मुस्तफ़ा के घर और मुस्तफ़ा की जात और मुस्तफ़ा की शान कौन सी चीज है जो मुस्तफ़ा के दर से नहीं मिलती? बेशक बेशक सुभान। अच्छा बताएं कोई चीज ऐसी है जो मुस्तफा के इख्तियार में ना हो या मुस्तफा के पास ना हो? है भाई, जहां तक मैंने पढ़ा है मुझे तो आज तक कोई चीज ऐसी मिली नहीं कि जो मुस्तफा के दर से निकलती ना हो। बेशक बेशक सुभान, के दर से निकलती ना हो। अल्लाह अकबर। अब जुमला ये है कि अल्लाह ने सब कुछ तो पहले ही दे दिया मुस्तफा को, तवज्जो रखना। बेशक अल्लाह ने, यार मुस्तफा ने कहा अल्लाह मैं चांद को 2 टुकड़े करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा महबूब इतनी सी बात, जा करते उंगली का इशारा, ये भी चीर देंगे हम तेरे लिए। सुभान अल्लाह सुभान। कर दे उंगली का इशारा, 4 चांद के 2 टुकड़े कर दिए। किसने? मुस्तफा ने। सब चीज मुस्तफा के दर पे है, फिर भी अल्लाह क्या फरमा रहा है? ए महबूब अनकरीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ मुस्तफा को दिया है, लेकिन अल्लाह उस क्या चीज को कह रहा है जो अभी दी नहीं है? तवज्जो रखना। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम समझ रहे होंगे। यार अल्लाह फरमा रहा है ए महबूब इतना देंगे हम, तुम राजी हो जाओगे। यार अल्लाह के रसूल तो पहले ही राजी है, अल्लाह के रसूल तो पहले ही राजी है, लेकिन अल्लाह कहता है ए हबीब अनकरीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह, तुमने कभी गौर व फिक्र किया कि यार सब चीज तो मुस्तफा के पास है, लेकिन अल्लाह क्या चीज देना चाहता है मुस्तफा को? आए यार जुमला सुनोगे ना तो जितने गुनाहों की दुनिया में डूबे हुए हैं ना हम लोग, उनको उस बात से अगर हमने दिल पे ली और वाकई मुस्तफा के इश्क का चिराग हमारे दिलों में रोशन है ना, तो हम गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। कल को जुलूस मोहम्मदी निकलेगा। बरेली के उलमा ने कहा डीजे, गाजा, बाजा, उछल कूद ये सब नाजायज है, हराम है इस्लाम में। बेशक सुभान अल्लाह। संभल के उलमा हो या मुरादाबाद के उलमा हो या कहीं के उलमा हो, सबकी यही बात है। लेकिन बताइए आज तुम उलमा की नहीं मान रहे। याद रखो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस कौम ने अपने लीडरों की नहीं मानी है वो कौम तबाह और बर्बाद हो गई। बेशक सुभान। अच्छा ढोल ताशे बजा, अच्छा किसी डीजे एक भी पूरी इसके क्या नाम है ढकिया के एक भी आलिम साहब, बहुत सारे आलिम है यहाँ पर, एक भी आलिम को ये बता दो वो डीजे करके आया, एक भी आलिम बताओ। यार अगर सवाब होता तो आलिम करने जाता कि तुम जाते करने? किसी जलसे के मौलाना को कराया तुमने? तुम क्या कहते हो यार इमाम साहब तुम करो, कहते हो या नहीं कहते हो? क्यों कहते हो? यार इमाम साहब अच्छा जानते हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये आलिम है, ये जानते हैं जलसे में कितना सवाब है, ये जानते हैं नात पढ़ने में कितना सवाब है। तो आज तक डीजे अगर जायज होता तो किसी आलिम के पास हम ना जाते कि भाई बढ़िया सा डीजे करियो जो उस वाले को हरा दे। कहते हैं नहीं कहते? लेकिन हमें पता है, हमारा ज़मीर अंदर से कहता है ये नाजायज है, ये गुनाह का काम है, लेकिन ये दुनियादारी, ये नफ्स हमें छोड़ने नहीं देता। मेरे प्यारों उस नफ्स को एक तरफ करो और मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर ज़माने की आंखों में आके डालकर कहो दुनिया का रुख बदले तो बदल जाए, दुनिया का मौसम बदले तो बदल जाए, लेकिन मुस्तफा के दीवानों का दिल भी वही रहेगा जो अबू बकर सिद्दीक का है, जो उमर फारूक आज़म का है, जो उस्मान गनी का है, जो हैदर अल्लाह का है। ना कल बदला है ना आज बदलेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अरे बताएं, हम जुलूस मोहम्मदी निकालते नहीं निकालते, सब निकालेंगे सुबह, लेकिन पूरी दुनिया यार हमको देखती है नहीं देखती है, हैं? डीजे बजाएं हम, जो हमारी कौम के जोहला हैं, डीजे बजाएं हम, गाजे करें हम, डांस करें हम, नमाज़ें छोड़ें हम, तमाम काम हम करें, और फिर एक माइक लेकर एक आलिम साहब के पास आता, कहता है भाई बताओ ये 12 रबीउल अव्वल में डीजे बजाना जायज़ है? तो भैया आलिम ने तो बजाया ही नहीं है, आलिम ने तो बजाया ही नहीं है। सवाल आलिम उलमा से होता है, बताओ क्या जवाब दें? यूं कह दें ये कौम हमारी नहीं है, यूं कह दें, अगर तुम्हारा मस्जिद के इमाम साहब कह दें, इनसे कोई पूछा आके कि तुम्हारा मुक्तदी शराब पी रहा समझा नहीं सकते, तो कह दें मेरा मुक्तदी है ही ना, चंदा दे दोगे इमाम साहब को? हैं? दे दोगे? 15 किलो पे लड़ाई हो जाएगी, समझ रहे? चंदा नहीं देंगे, आज भी तय किया जाता है, लेकिन कह दिया करो यार जो तुम्हारे नसीब का है, इंशाअल्लाह गांव का मुखिया तो मुखिया, शहर का चेयरमैन भी नहीं रोक सकता। बेशक सुभान तवज्जो है, मिलकर रहेगा। तो यार हम ऐसे काम क्यों करते हैं कि हमारे उलमा पर भी उंगली उठाई जाए, हैं? अच्छा बताइए, चलो ये उलमा ने कह दिया कि ये हमारे आदमी नहीं है, चलो किसी का तुम काम चला लोगे दुनिया में, चला लोगे, मैंने मान लिया कि इमाम साहब ये वाले ना इनसे भांतियां लगवा लो, यही तो काम है बस, है? इमाम और मौलाना को इसलिए छोड़ दिया है, हालांकि उलमा ये कौम की सदारत करने के लिए आए थे। बेशक सुभान, ये उलमा की जमात कौम की रहनुमाई करने के लिए आए थे, कौम के लीडर है ये लीडर, इनके हुक्म पर इनके फैसले किए जाएं, इनसे फैसले लिए जाएं, लेकिन हमने क्या करा? फातिया इनके नाम, दसमा इनके नाम, तीजा इनके नाम, और जुमेरात की फाता इनके नाम, और जी भैंस की डोरी इनके नाम, और ठुरियों की डोरी इनके नाम, पानी का गिलास इनके नाम, तेल की बोतल इनके नाम, और प्रधानी जो गांव का सबसे बड़ा लट्ठ है उसके नाम। तो वो तो मारेगा एक दूसरे को, तवज्जो है? उमर फारूक आज़म को पता था सियासत किसको कहते हैं, लीडर किसको कहते हैं, हुकूमत किसको कहते हैं। आज 1400 साल गुजर गए, उमर की हुकूमत को आज के दुनियादार भी ये कहते हैं, अगर हुकूमत हो तो उमर जैसी हो, लीडर हो तो उमर जैसा हो, अगर कानून हो तो उमर के जैसा हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। देते तो कहते हैं जिंदगी में यही ना होगा, सब हो जाएगा, हैं? तो यार हम पहले ही अच्छे गुना बना, मेरा कहने का मकसद ये मत समझ लेना कि यार इमाम साहब को लड़वा दो प्रधानी, समझ रहे हैं? प्रधानी लड़ गए, शायद मैं नाम भी लूं तो आप जानते होंगे, यहाँ से भी प्रधानी लड़ गए, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, बड़ी अच्छी 16 साल से इमामत चल रही थी, धड़ल्ले से, कोई कुछ कहने वाला नहीं, आ गए 2-4 के चढ़ावे में, क्योंकि 2-4 तो जरूर चढ़ाने में रहते हैं। अरे हाँ वो कह देगा कुछ हमारे सामने, मैं तो तुम्हारे साथ, हालांकि जब इमाम से होती है ना तो कहते यार अब सही ना है, अब सही ना है, वही सपोर्ट वाले क्या कहते हैं, अब सही ना, बुराई की तरफ खड़े हो जाते हो मेरे प्यारो, अच्छाई की तरफ खड़े हो जाओ, अगर अकेले भी हो तो तना खड़े हो जाओ, करबला के इमाम की तरह। उधर 22,000 का लश्कर जमगार है, इधर 72 है, पानी बंद है, खाना बंद है, बच्चे साथ है, बीबी साथ है, सब लोग साथ है, लेकिन फिर भी हुसैन कहता है अगर लश्कर तुम्हारे पास है होने दो, ताकत तुम्हारे पास है होने दो, बंदूकें तुम्हारे पास है होने दो, पानी तुम्हारे पास है होने दो, लेकिन मुस्तफा का फरमान तो मेरे साथ है, खुदा की ताकत मेरे साथ है, मुस्तफा की शान मेरे साथ है, हुजूर की उम्मत मेरे साथ है। बेशक बेशक सुभान। हम क्या कहते हैं, कोई मसला ना यार, अब तुम ना रहोगे तो आपस में दिल बुरैया वाली बात होगी, लड़ाई हो जाएगी एक आदत से, क्यों उससे ही लड़ो जो कह दिया, समझ रहे? बहरहाल तो मैं बता रहा था प्रधान 16 साल के बाद कि लड़ो, हम हैं, वोट भी दिलवाएंगे और सपोर्ट भी पूरी रहेगी। प्रधान बना दिया, बहुत अच्छी मामत चल रही थी, खाना पीना, बिल्डिंग, घर बना लिया, बड़ा अच्छा, मैं खुद देख पाया। बेशक आपको इल्म होगा, घर बना लिया, प्रधानी आ गई, इमाम साहब भी भाई माशाल्लाह इमाम थे, वो तो पहले से डरा के रखते थे कौम को, फिर तो प्रधान हो गए, अब बोलते क्या मुक्तदी प्रधान हो गए। अब भैया आज पूछ लो कारी जुबैर साहब से, 1.5 या 2 साल ना गुजरे, जो जाहिलों ने प्रधान बनाया था उन्होंने प्रधान जी, अब कह रहे हैं घर भी छोड़ो यहाँ से,
अब घर जो बनाया था वो भी बेचारों को छोड़ के जाना पड़ा, और इज्जत अलग हुई, और आस पड़ोस के गांव में वो नहीं मामन। तो मेरे भाइयों ऐसा नहीं है, तवज्जो रखें मेरे सामने। हाँ, तो हम वो काम करें जो हमारी शरीयत इजाजत देती है, जो कुरान कहता है उन फरमीन पर अमल करें। इश्क करें तो मुस्तफ़ा के गुलामों जैसा इश्क करें। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कारी जुबैर साहब, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैदान महशर में ये 50,000 का साल दिन मुस्तफ़ा की अजमत को बयान करने के लिए, और फिर इसके बाद जो मैं अर्ज कर रहा था तो ये अर्ज कर रहा था अल्लाह ने सब कुछ तो दिया है मुस्तफ़ा को, और अल्लाह कुरान में कह रहा है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम करीब इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। बेशक है वो कौन सा दिन होगा? तो मेरे प्यारो सुन्नी मुसलमानों, हमारे मुस्तफा मनाने वालों, अपने दिलों पर हाथ रखो और अपनी किस्मतों पर नाज करो। अल्लाह ने हमें दुनिया में पैदा भी किया है तो मुस्तफा के गुलामों ने पैदा किया। बेशक सुभान। कुछ वो भी हैं अहमद मुस्तफा कह रहे हैं कहाँ लिखा हुआ, देखते रहो, ये किताब में नहीं है, ये तो सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा हुआ है। बेशक सुभान, ये तो मुकद्दर में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? ये किताबों में है लेकिन तुझे चमकेगा नहीं, क्योंकि तूने चश्मा जो लगाया है ना इसमें शीशे ही खराब है तेरे। हाँ, तवज्जो रखना, तुझे नहीं चमकेगा मेरे भाइयों। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम अनकरीब तुम्हें इतना देंगे। जरा मेरे साथ हाथ उठाकर मेरी तरफ देखें और बताएं सारी चीजें किसने दी हैं हमें, सारी चीजें किसने दी हैं हमें? बोले अरे किसने दी है? अरे अल्लाह ने दिए ना यार, सब कुछ अल्लाह का ही तो है। अल्लाह ने दिया है नहीं हमें सब कुछ है? सब कुछ किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। सब कुछ अल्लाह ने दिया है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। और हमारे बाप को किसने दिया है? आप कहोगे अल्लाह ने। मैं कहूँगा उनके बाप को किसने दिया है? आप कहोगे अल्लाह ने। मैं कहूँगा उनके बाप को किसने दिया है? तो आप कहोगे अल्लाह ने। सबको अल्लाह ने दिया है। जब अल्लाह ने दिया है उसी का माल है। अब हम मस्जिद में पैसा दे रहे हैं, मकसद एक ही है अल्लाह राजी हो जाए। हम मस्जिद में पैसा दें, मदरसे में पैसा दें, मकसद एक ही है अल्लाह राजी हो जाए। हम किसी गरीब को खाना खिलाएं, मकसद एक ही है अल्लाह राजी हो जाए। कायनात में तमाम लोगों का मकसद एक ही है, ए अल्लाह मैं जो भी करूं मकसद बस इतना है कि तू राजी हो जा। अल्लाह राजी हो जा, राजी हो जा। अब बताइए यहीं पर तवज्जो रखना, यहीं पर तवज्जो रखना। मुस्तफा की शान को देखना। मुस्तफा को नबियों का सरदार किसने बनाया? अरे बोले मेरे साथ जवाब दें, अरे सवाब मिलेगा। नबियों का सरदार किसने बनाया? अल्लाह ने। रसूलों का इमाम किसने बनाया? अल्लाह ने। ताजदारे अंबिया किसने बनाया? अल्लाह ने। कायनात का मालिक किसने बनाया? अल्लाह ने। आमना के घर किसने भेजा? अल्लाह ने। रबीउन नूर को किसने भेजा? अल्लाह ने। मक्के से मदीने को किसने भेजा? अल्लाह ने। अबू बकर साथी किसने बनाया? अल्लाह ने। उमर जैसा लीडर किसने दिया? अल्लाह ने। उस्मान जैसा सखी किसने दिया? अल्लाह ने। अली जैसा बहादुर किसने दिया? अल्लाह ने। बिलाल जैसा मुअज्जिन किसने दिया? अल्लाह ने। उमर जैसा लीडर किसने दिया? अल्लाह ने। हजरत अबू हुरैरा जैसा गुलाम किसने दिया? अल्लाह ने। जाबिर जैसा औलाद किसने दिया? अल्लाह ने। हुसैन हसन जैसे नवासे किसने दिए? अल्लाह ने। फातिमा जैसी बेटी किसने दी? अल्लाह ने। अली जैसा दामाद किसने दिया? अल्लाह ने। जब हमें भी अल्लाह ने दिया है और रसूल को भी अल्लाह ने दिया है। बेशक सुभान, हमें भी अल्लाह ने दिया है और हुजूर को भी तमाम अल्लाह ने दिया है, लेकिन मकसद दोनों के अलग हो गए। बेशक बेशक मुफ्ती मकसद दोनों के अलग हो गए।
अल्लाह ने दिया, उसी में से हम खर्च करें। तो हमारा मकसद क्या है? अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा। लेकिन कायनात में एक ऐसी शख्सियत है जिसको आमना का लाल कहा जाता है। अच्छी अजमतें अल्लाह ने, की शान अल्लाह ने, लेकिन मुस्तफा को अल्लाह चाहता है। ए महबूब, मैं चाहता हूँ सब लोग मुझे राजी करें, लेकिन मैं चाहता हूँ ए महबूब मैं तुझे राजी करूं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ए महबूब मैं तुझे राजी करूं। अब वही मैदान महशर, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब हम तुम्हें इतना देंगे। उसी पॉइंट पे आने के लिए तमहीद बनाई है। अब जब मैदान महशर सजा हुआ होगा, हम जैसे गुनहगार खड़े हुए होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा। आदम आदमियत के बाप कहलाने वाले कहेंगे नहीं नहीं, आज ये मेरे बस का काम नहीं है, अरे मुझे तो अपनी पड़ी है, और कहीं चले जाइए। बाप कहेगा और कहीं चले जाइए। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सर सजदे में रख के कहेंगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए महबूब बता, मैंने तेरी उम्मत के 500 लोगों को जन्नत में भेज दिया, बता तू राजी हुआ क्या नहीं राजी हुआ? मुस्तफा का सर सजदे में है। मैंने 2000 को भेज दिया, बता मुस्तफा तू राजी हुआ क्या नहीं हुआ? सर सजदे से उठा। ए मुस्तफा मैंने तेरी आधी उम्मत को जन्नत में भेज दिया, सर सजदे से उठा। मुस्तफा कहेंगे अभी राजी नहीं हूँ, जब राजी हो जाऊंगा सर सजदे से उठा लूंगा, जब खुश हो जाऊंगा सर सजदे से उठा लूंगा। अल्लाह फरमाएगा ए महबूब मैंने तेरी तमाम उम्मत को जन्नत में भेज दिया। मुस्तफा जाने रहमत सर सजदे से उठाएंगे और कहेंगे मौला मैं पहले भी खुश था और मैं आज भी तुझसे खुश हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। अरे बात समझ आ रही है या फिर इख्तिताम कर लिया जाए? देखो मैं जानता हूँ जुलूस, असल में तुम्हें बता दूं ना, मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे भी बहुत बड़ा जुलूस निकालना। हाँ, और फिर मुझे रात को, फिर बल्कि दोपहर से ही मुझे प्रोग्राम के लिए निकल जाना है, समझ रहे हैं? तो मुझे भी तो उठाना है, उठाना है ना उठाना है। और तुम्हें टहलना है, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, और मैं भाग भी नहीं सकता न भर का। मेरे हल्के वाला कहेगा इमाम साहब तो यही नहीं, वो तो दिखाई ना दिए, कलुआ के मोड़े से गायब है, समझ रहे? चाहे इमाम हाँ गायब है, तो मुझे उठाना है। लेकिन अब देखना ये है जुलूस मैं भी उठाऊंगा और जुलूस तुम भी उठाओगे। नबी का गुलाम मैं भी हूँ और नबी का गुलाम तुम भी हो। देखते हैं कौन पहले उठता है। देखोगे? अरे बोले साहब खामोश हो गए कि कहीं शर्त हो ही ना गया, तो पता लगे कि फजर से इमाम ने मिनट भी ले गए। हाँ कहीं शर्त हो ही ना जाए। शर्त नहीं रखूंगा मेरे प्यारो, मुझे नमाज़े फजर का भी ख्याल है। लेकिन कह तो दो यार, इश्क में तो बोल जाओ इंशाअल्लाह। यार सब कोई जान तोड़ी देते हैं मुस्तफा के नाम पर, लेकिन कहते तो सभी जान दे देंगे। अरे जान देने वाले तो करबला में थे, जान देने वाले तो बदर में थे। बेशक बेशक बेशक। उनके थोड़े से भी, उनके नक्शे कदम पे बताएं हैं, थोड़े से भी है, थोड़े से भी सबको गिनती करी जाए, पूरे मजमे में गिनती करी जाए, पूरे मजमे में गिनती करी जाए तो मुश्किल से 2% ऐसे निकलेंगे जिनके चेहरे पर दाढ़ी है। बाकी 98% सीपाव 0 है। बेशक बेशक। यही है हमारा इश्क मुस्तफा से, यही है इश्क है। कल को मैं बताऊं तुम्हें अगर मिलाद क्या है, चलो आज मैं बता देता हूँ। बेशक बेशक। जुलूस में भी टहलियो, लेकिन मैं फर्ज कर लो, मैं कह रहा हूँ एक आदमी से, तू कल को जुलूस में मत टहलिए, लेकिन तू कल को मस्जिद में नहीं बल्कि तन्हा अल्लाह से वादा कर लिए खड़े होकर कहीं भी जहाँ चाहे अल्लाह तना वादा कर लिए, या अल्लाह आज से मैं एक भी टाइम की नमाज नहीं छोड़ूंगा। कसम खुदा की तुम 50 नहीं 1000 मरतबा भी जुलूस मोहम्मदी में निकले होगे और नमाजें छोड़ी होगी, उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। आप कैंसिल। और अगर तुमने कल को जुलूस में एक कदम नहीं रखा और वादा कर लिया अल्लाह नमाज छोड़ूंगा नहीं और पाबंद रहे और कल को ही मर गए,
कल कोई मर गए तो कसम खुदा की वो अजर मिलेगा, हमसे संभाले नहीं संभलेगा। बेशक बेशक। कल को वादा करो कि जुलूस में भी निकलूंगा, किसी एक मजलूम के आंसू पेसूंगा, किसी एक मजलूम के सर पर हाथ रखूंगा। अल्लाह की कसम, सारी जिंदगी के सजदे एक तरफ, सारी जिंदगी की इबादत एक तरफ, सारी जिंदगी की रियाजत एक तरफ, सारी जिंदगी के रोजे एक तरफ, सारी जिंदगी के सदकात एक तरफ, और मजलूम के आंसू पहुंचना एक तरफ, एक तरफ है, एक तरफ मजलूम के आंसू पहुंचना। करो ये वादा, लेकिन नहीं, हमें करना क्या है कि कल को ये देखना है, बस कुछ लोग तो यही देखेंगे कि पल्ले मोहल्ले का डीजे ज्यादा जोर से बोल रहा है हमारे मोहल्ले का। अब वो फिर जब वो जो शैतान किस्म की खोपड़ी होगी, जब ना बोला सो तो कहेंगे भाई अगले साल कुछ आज चंदा 500 का भरा है, उनका फट जाना चाहिए, इतना बढ़िया वाला लगी चाहे दम्बल से ला। हाँ, अरे मेरे प्यारो, ऐसी मोहब्बत करो कि या रसूल अल्लाह, कल से हम एक गुनाह से तौबा करेंगे और एक नेकी को अपनाने का अमल करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। बताएं, नमाज़ें छोड़कर अगर हम जुलूस में 2 दिन घूमते रहो, क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, तुम ही थकोगे बस, और कुछ ना हो रहा। इधर आधर से पार्ले जी लूट लोगे, बिरयानी लूट लोगे, इसके अलावा कुछ नहीं है अगर नमाजें छोड़ोगे तो। हैं, कल को जुमा है, पहली चीज तो ये कोशिश करना कि जुमे से पहले इख्तिताम कर दो जुलूस मोहम्मदी का, और जुमा सुकून से पढ़ो। लेकिन फिर भी अगर इसको और बड़ा है तो पूरी रात घुमाओ, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाए तो वहीं पर रोक दो और नमाज पढ़ने जाओ, और चलो तो दुरूद पाक पढ़ते हुए चलो, सर पर टोपी हो, ज़बान पर दुरूद पाक हो, आसमान के फरिश्ते कहे या रसूल अल्लाह, तेरे उम्मतियों को देखकर आज सिदरा के मलाइका को भी रश्क आ रहा है। बेशक बेशक। सिदरा को मलाइका को भी रश्क आ रहा है। यार तुम हमारे मुस्तफा को समझे ही नहीं, समझे ही नहीं। यूं ही थोड़ी दे दिया हमें नबी अल्लाह ने। अल्लाह ने जब नबी देना था 18,000 मखलूकात पैदा फरमाई, 18,000 मखलूकात में से किसी को नबी नहीं दिया। अल्लाह ने जब नबी को चुनना था तो इंसानों को चुना, इंसानों में से अल्लाह ने रसूलों को चुना, रसूलों में से अल्लाह ने इंसानों में से अल्लाह ने नबियों को चुना, नबियों में से अल्लाह ने रसूलों को चुना, रसूलों में से अल्लाह ने इब्राहीम खलीलुल्लाह को चुना। इब्राहीम खलीलुल्लाह के 2 बेटों में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को चुना, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से बनु किनाना को चुना, बनु किनाना से अल्लाह ने बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को चुना। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को चुना, और अब्दुल्ला के घर में ये सदाबहार फूल भेज दिया और ज़माने में ऐलान करा दिया, मैंने कायनात में अपना महबूब भेज दिया है, अगर आशिक हो तो आओ मुस्तफा के दरबार से। बेशक बेशक सुभान। हजरत सैयदा आमना की गोद में कौन है भैया? बोले मचल कर, अरे बोल सैयदा आमना के गोद में कौन? अरे बोले नबी का नाम ले यार, मुस्तफा जाने रहमत। सैयदा आमना की गोद में मुस्तफा जाने रहमत। सैयदा आमना कहती हैं इतना हसीन मैंने नहीं देखा, बेशक मैंने नहीं देखा। भाई ये कह रहे हैं कि लोग उठ के जा रहे हैं, खत्म कर लो, सही है ना? नहीं ऐसा आदमी को और भी कहना। हालांकि ये मैं तुम्हारी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया, 1 घंटा तो हो ही गया, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में बोल रहा हूँ और कुछ नहीं है। हालांकि मेरे अभी और भी प्रोग्राम है, तो आवाज़ भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, नींद भी चाहिए, एनर्जी चाहिए, लेकिन तुम अच्छा सुन रहे हो इसलिए सुना रहा हूँ। आपने वादा कर रहे हो कि भाई हम गुनाहों से तौबा करेंगे, तो मुझे अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं? तो क्या सैयदा आमना कहती हैं, सैयदा आमना क्या कहती हैं कि इतना हसीन मैंने नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्तफ़ा को देखा तो कहा इतना हसीन मैंने नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह। हजरत गाई हलीमा ने जब मुस्तफ़ा को देखा तो कहा इतना खूबसूरत मैंने नहीं देखा। अभी ये तज़किरा ही कर रहे थे। सिदरा के मकी जिब्रील अमीन ने पुकार कर कहा, है अब्दुल मुत्तलिब तुमने देखा ही क्या है? बेशक क्या जुमला है? तुमने देखा क्या? तिजारत की नियत से मुल्क शाम चले गए, एक आध और मुल्क चले गए, तुमने कितने इंसानों को देखा होगा?
तुमने देखा ही क्या है? अरे मुझसे पूछो मुस्तफा का हुस्न, मुझसे पूछो मुस्तफा की अजमत। मैंने दुनिया के हर गोशे को देखा, मैंने आसमान के हर गोशे को देखा, मैंने आदम को देखा, मैंने नूह को देखा, मैंने यूसुफ के जमाल को देखा, मैंने ईसा के कमाल को देखा, मैंने सब चीज देखी, लेकिन मैंने मुस्तफा जैसा कोई नहीं देखा। बेशक बेशक मैंने मुस्तफा जैसा कोई नहीं देखा। अभी जिब्राइल कह ही रहे थे, कह ही रहे थे, अल्लाह का नकी पुकार के बोला, तो जो है अल्लाह का नकी पुकार कर बोला, ए जिब्रील अमीन, ए आमिना, ए अब्दुल मुत्तलिब, ए हलीमा सादिया, तुम देखते कहां से? उसके अल्लाह ने अभी तक मुस्तफा जैसा बनाया ही कहा है। बेशक यार देखेगा तो जब ना जब अल्लाह बनाएगा। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ताले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक मनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। बेशक बेशक आखिरी बात और बात मुकम्मल करूं इंशाअल्लाह। इश्क करो। मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि इश्क मुस्तफा से लाजवाब ऐसा करो जब दुनिया के ये इश्क करने वाले देखें तो कहें, अरे आशिक बनना है तो मुस्तफा के आशिक जैसा बनो। ऐसा आशिक क्या फायदा कि टोपी तो पूरे दिन लगाई, जोर में कुर्ता पूरे दिन पहना, असर में ही ना पहुंचा, समझ रहे हैं? बिरयानी पूरे दिन लूटी, लेकिन ईशा में ही ना पहुंचा। अल्लाह की नेमतें खूब गट रोजाना मुर्गे मुसल्लम, कभी फ्राई ठार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन अल्लाह की तरफ ध्यान ही नहीं है। हालांकि अल्लाह फरमाता है कुरान में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, हमने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम गुनाहों के दलदल में फंस जाओ, तुम चौराहों पर बैठकर नमाज के टाइम बातें करो, तुम एक दूसरे की चुगलखोरी करो, तुम एक दूसरे का माल हड़प करो, तुम एक दूसरे की जमीनों की मेड़े काटो। हमने इसलिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ लोगों, हमने जिन्न और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बेशक बेशक इबादत के लिए पैदा किया। कोई भैंस दूध ना दे, 1 महीना देखता है, 2 महीने देखता है, यहाँ तक कि बरसिंग छोड़ देता है, फिर रातब डालना छोड़ता है, सूखा भिस खिलाना शुरू कर देता है कि दूध तो दे ही नहीं रही। भाई भैंस को क्यों लाया जाता है? दूध के लिए। अब जब मकसद दूध है और मकसद फोत हो गया है तो कहता है 2 महीने देखने के बाद, अरे भेज इसे कसाई को, अब तक खिलाएंगे। ऐसे ही है नहीं बात। अब मेरे प्यारो, एक बचपन से लेकर एक जवानी आ गई, जवानी से लेकर 40 साल तक पहुंच गए, 40 से 50 पहुंच गए, 60 और 70 पहुंच गए, यहाँ तक कि कब्र में जाने का वक्त आ गया। कभी अल्लाह ने तुम्हारी नमाजों छोड़ने की वजह से अपने रिस्क को नहीं रोका, तुम्हारी नमाज छोड़ने की वजह से अपने पानी को नहीं रोका। रोज सोते हो, पेट भरा देता है, रोज उठते हो, पेट भरा देता है, और दुनिया की नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देता चला जाता है। कभी तुमने सोचा है, अगर अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है उस मकसद में हम नहीं उतर रहे हैं, और अल्लाह ने अगर हमें रिस्क को रोक लिया तो है कायनात में कोई एक लुकमा भी दे सके? है कायनात में कोई एक लुकमा भी दे सके? तो मेरे प्यारो तवज्जो दो। कोई नहीं है कायनात में ऐसा जो एक लुकमा भी तुम्हें दे सके, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं है तो। हैं? हिंदू में रहते रहते जी घबरा गया, हिंदू में रहते रहते जी घबरा गया, या नबी अब मदीना बुला लीजिए, हिंद में रहते रहते जी घबरा गया, और ताके उड़कर मैं पहुंचूं मदीना तलक। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा शेर सुना रहा हूं, फिर भी मुस्कुराकर बोला सुभान अल्लाह। हाँ, ताके उड़कर मैं पहुंचूं मदीना तलक, बाजुओं में मेरे पर लगा दीजिए, या नबी अब मदीना बुला लीजिए। और जो शेर सुना
सुनाने के लिए मैंने ये पढ़ाई है, नाते पाक शुरू की है सब तवज्जो के साथ। हशर में जब नबी से कहेगा खुदा, हशर में जब नबी से कहेगा खुदा, हशर में जब नबी से कहेगा खुदा, आओ आओ करीब है मेरे मुस्तफा, आओ आओ करीब है मेरे मुस्तफा। और किसको दोज़ख, जिसको दोज़ख, किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं। बेशक बेशक। जो मेरी तकरीर का निचोड़ है मुस्तफा की अज़मत है, अल्लाह फरमाएगा। हाँ, हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, आओ आओ करीब है मेरे मुस्तफा, आओ आओ करीब है मेरे मुस्तफा। किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं, किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं। चुपके आकर, चुपके से आकर मुझे बता दीजिए, या नबी अब मदीना बुला लीजिए। और मुझको इज्जत न दो, मुझको दौलत न दो। बेशक बेशक। शायर ने यार क्या तरतीब कीजिए हैं। आज हमें इज्जत भी पूरी चाहिए और दौलत भी। हम अगर हराम के माल से कोठी जमा कर ले, फिर भी हम ये चाहते हैं कि पूरे गांव वाले नुके के इनने तो बिल्कुल नमाज़ें पढ़ के कमाइए वाली। बेशक चाहते भी ये हैं, समझ रहे हैं। और दौलत भी ऐसी चाहिए, और वो भी ऐसी चाहिए बिल्कुल मिनटों सेकंड में, आने वाले साल नहीं बल्कि एकदम कारोबार ऐसा शुरू हो जाए कि धड़ाधड़ नोटों की गड्डियां आए, समझ रहे हैं। लेकिन शायर क्या कहता है, मुझको इज्जत न दो, मुझको दौलत न दो, मुझको इज्जत न दो, मुझको दौलत न दो। क्या करूँगा हुकूमत, हुकूमत न दो, मुझको इज्जत न दो, मुझको दौलत न दो। और बस निगाहे करम हम पर हो या नबी, बस निगाहे करम हम पर हो या यारे नबी। बस एक मुकम्मल, बस एक मुकम्मल नमाजी बना दीजिए, या नबी अब मदीना बुला लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलमा तैयबा का विर्द करें। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना